Hello, my dear friends. So, now I'm starting a new chapter, that is chapter 1 of social studies: what, where, how, and when. Okay, so let's start our chapter. First, the question arises: what? Okay, so what we know about the past, what we can know about the past, हम हमारे past के बारे में क्या क्या जान सकते हैं. Okay, what people used to eat, लोग क्या खाते थे, the types of clothes they used to wear, किस टाइप के clothes वो लोग पहनते थे, किस टाइप के हाउसेस में वो लोग रहते थे, एंड हाउ वाज देयर लाइफ एज अ हर्डर, एज अ फार्मर, एक्सेट्रा. एंड गेम्स क्या क्या थे जो उस टाइम पे चिल्ड्रन खेलते थे, क्या स्टोरीज वो लोग सुनते थे और क्या सॉन्ग्स वो लोग गाते थे. नाउ द सेकंड क्वेश्चन राइजेस: वेयर. नाउ वेयर डिड दिस पीपल लिव? So can you see this particular map? In this particular map, can you see river Narmada? This is river Narmada. Okay. So during thousand and thousand year ago, people used to live near this place, and they are called as skilled gatherer. So why they are called as skilled gatherer? ये लोग स्किल गैदरर इसलिए कहे जाते थे बिकॉज दे आर गैदरिंग देयर फूड बाय हंटिंग. Also, they have vast knowledge of plants in the surrounding forest and collecting roots and all this. So they have knowledge of all this. Now, can you find the second place, that is Suleiman and Kirtar Hills? This place comes in this area. Okay, so in this place, in some of this place, man and woman, they started to grow wheat and barley. They started to grow crops. वो लोग यहाँ पे crops उगाना start कर दिया था 8,000 years ago. ओके, एंड उन्होंने यहाँ पे एनिमल्स को रियर करना भी स्टार्ट कर दिया था. एंड देन व्हाट डज रियरिंग मीन्स? अब रियरिंग होता क्या है? एक्चुअली रियरिंग मीन्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. नाउ लेट्स सी द सेकंड प्लेस, दैट इज गारो हिल्स. गारो हिल्स यहाँ पर आती है एंड विंध्या रेंज यहाँ पर आता है. ओके, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर का नॉलेज स्टार्ट हुआ था वो इस प्लेस में स्टार्ट हुआ था. इसके कुछ प्लेसेस में एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था, और जो राइस सबसे पहले ग्रो की गई थी वो विंध्या रेंज के नॉर्थ में ग्रो की गई थी. ओके, नाउ कैन यू ट्रेस रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ट्राइब्यूटरीज? ट्राइब्यूटरीज होता क्या है? एक्चुअल में ट्राइब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स which flows into large rivers. Okay, around 4,700 year ago, कुछ cities flourished हुई थी along the bank of this river Indus. Okay, उसके बाद 2,500 ईयर अगो गंगा नदी और उसकी ट्राइब्यूटरीज जो थी उसके आसपास बहुत ही इम्पॉर्टेंट किंगडम डेवलप्ड हुआ था जिसको मगध कहा जाता है, जिसका रूलर बहुत ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम पर. ओके, जो आज प्रेजेंट में बिहार है. ओके, सो इट वाज अराउंड 2,500 ईयर अगो. This all information is about 1,000 year ago people used to live in this particular places which are very important. Okay, now the next question arises: what they do in traveling, for traveling, why they travel from one place to another? वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे? आपको पता है कि आज के टाइम में ट्रैवल करना बहुत इजी होता है, बट इन पास इट वाज वेरी डेंजरस फॉर देम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. There was hill, high mountains including Himalayas, deserts, rivers. It made their journey very much dangerous. Then too, it was never impossible for them. Now, man and woman during that time they travel from one place to another. In ancient time, the man and woman travel for their livelihood. First, वो अपनी livelihood के लिए travel करते थे. For living their life, they have to travel from one place. They have for hunting and for gathering food they have to travel. Now second is due to some natural disasters like heavy rainfall, volcano eruption and all this was all the reason that they have to travel from one place to another. Man, they marches into the armies for conquering land, and for that reason also they have to travel. The last reason, that is the teachers, they have to teach their disciples, and they have to move from one place to another, from town to cities. So this was all the reasons. Some of the people, they have to travel for discovering new places. This was also one of the reason that
why they were traveling. Now, this was all about traveling. Now, our next question arises, the name of the land. हमारी जो कंट्री है वो ऑफन इंडिया और भारत के नाम से जानी जाती है, यू ऑल नो दिस। अब इसको इंडिया क्यों कहा जाता है और भारत क्यों कहा जाता है? एक्चुअली द वर्ड इंडिया इट कम फ्रॉम द वर्ड इंडस। इंडिया इंडस से आया है, जिसको सिंधु कहते हैं संस्कृत में। आप कभी मैप देखेंगे ईरान और ग्रीस आपके एटलस में, तो आप फाइंड करेंगे कि जो ईरानियंस और जो ग्रीक्स थे, जो नॉर्थ वेस्ट से उस टाइम पर आए थे, अराउंड इट वाज अराउंड 2500 ईयर अगो। उस टाइम पर जब वो यहाँ पर आए थे तो वो इंडस नदी के फेमिलियर थे, और वो इंडस नदी को हिंदूज और इंदूज भी कहते थे। और जो लैंड इसके ईस्ट में पड़ता था, उस रिवर को वो लोग क्या कहते थे? इंडस कहते थे। और जो लैंड उस रिवर के आसपास पड़ता था, उसके ईस्ट में पड़ता था, उसको इंडिया कहते थे। ओके, सो दिस वाज द रीजन इट वाज कॉल्ड एज इंडिया। नाउ द नेम भारता, द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, जो कहाँ रहते थे? नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, जो कि ऋग्वेदा में मेंशन किए गए हैं। दिस वाज एक्चुअली द ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट। ओके, now next question arises, finding about the past. How we can find about the past? There are several ways through which we can find about the past, through reading books which was written thousand years ago, and this book was known as manuscript. Why they are called as manuscript? Because they was written by hand. The word manu is a Latin word which means hand. ओके, दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। और ये किस पे लिखे जाते थे? पाम लीफ पर लिखे जाते थे, या फिर किसी जो ट्री होती थी उसकी बाग पर लिखे जाते थे, जिसको बर्च कहते हैं, जो कि हिमालयाज में ग्रो होती थी। अब हम समझ सकते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी और ये बाग पर लिखी जाती थी या लीव्स पर लिखी जाती थी, तो थाउजेंड ईयर्स में ये डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। कुछ इंसेक्ट्स के थ्रू डिस्ट्रॉय होती थी, किसी नेचुरल रीज़न के थ्रू डिस्ट्रॉय होती थी, बट इनमें से कुछ सरवाइव भी की है। और इन सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के हमें पता लगा है कि उस टाइम पे क्या प्रैक्टिसेस होती थी, क्या रिलीजियस बिलीफ हुआ करता था, किंग्स के बारे में उनकी लाइफ कैसी होती थी, उस टाइम पे क्या मेडिसिन्स चलती थी, क्या साइंस के प्रैक्टिसेस यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट में संस्कृत की पोएम्स होती थी, प्लेज होते थे, ये जनरली संस्कृत में होते थे। इसके अलावा प्राकृत लैंग्वेज में भी हुआ करते थे, जो कि एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा एक और तरीका था जिसके कारण हम पास्ट के बारे में जान सकते थे, विच इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शंस। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है? एक्चुअली दिस आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस और स्टोन और द मेटल सरफेस, विच आर कॉल्ड एज इंस्क्रिप्शन। Okay, so sometimes king got their orders inscribed so that people get to know and they have to obey the rules. उनको rules obey करने होते थे, उनको पता करना था, तो सारी informations कहाँ पर inscribed कर दी जाती थी। किंग्स और क्वींस जो अपने डेली लाइफ की जो भी स्टोरीज होती थी, जो उन्हें मेंशन करना होता था, वो इंस्क्राइब करवाते थे। मेनली जो किंग्स होते थे वो अपनी विक्ट्रीज को इंस्क्राइब किए जाते थे। सबसे एडवांटेजेस इंस्क्रिप्शंस का क्या होता था मैन्यूस्क्रिप्ट के कंपैरिजन में, कि ये डिस्ट्रॉय इजीली नहीं होते थे, बिकॉज दे आर रिटन ऑन दी हार्ड सरफेस एंड दी मेटल। ओके, अब ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन निकाली जाती थी, इनकी स्टडी जो करते थे उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे। ये बिल्डिंग्स के रिमेन्स, स्टोन्स के, ब्रिक्स के, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के रिमेनिंग्स की स्टडी किया करते थे, जिनको क्या कहा जाता था? आर्कियोलॉजिस्ट भी कहा जाता था। ओके, नाउ हिस्टोरियंस। अब हिस्टोरियन कौन होते हैं? दिस आर एक्चुअली द स्कॉलर्स जो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में और बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। ओके, ये एक सोर्स के थ्रू फाइंड करके डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं और सारी इंफॉर्मेशंस पास्ट के बारे में क्लूज के थ्रू निकालते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, दैट इज, डू वी हैव वन पास्ट और मैनी पास्ट? हमारे पास्ट बहुत सारे थे या फिर एक पास्ट था? डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ अ बुक इज आवर पास्ट? It means we have so many past, different peoples, different group of the people having different type of past. Obvious,
The life of a herder is not as same as the life of the king, right? The life of the merchant is totally different from the life of the craft person. So all the people having different type of life. Today also कभी हम देखेंगे the people living in Andaman Island, वो अब आज भी फिशिंग हंटिंग कर रहे हैं. They are gathering their food through hunting and all this. As comparison to the people who are living in the cities, they are totally depend on the different peoples for their different supplies of food. Okay, so their life is totally different. The group of the people today also, they are having different types of life, so they have different past, different people having different past. Now the next question arises, what do date means? Date means होता क्या है? If somebody asks you date, you will probably mention the day or the month or the year, right? अब ये डेट काउंट कैसे होती हैं? एक्चुअली दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग ये सारी डेट्स जो रहती हैं ये काउंट की जाती हैं. अब कैसे काउंट होती हैं? ऑल द डेट्स विच कम्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज मेंशन एज बिफोर क्राइस्ट or is also called as before common era. Okay, and all the births that takes place after the birth of Jesus Christ are called as AD, that is Anno Domini, and the next is C, that is common era. Okay, any event before Christ is called as before Christ, even after the birth of Christ is Anno Domini. So this was all the chapter about. We have learned so many things and we come to know what can we can know about the past, then where did these people live, how we can know about the past, and the dates when we can know about the past. So that's all for the this particular chapter. Thank you and have a nice day.